Good morning, class. I hope you all are good at your home. This is the summarized video of chapter 13, Discovering Electricity. So, what is electricity? Electricity is a form of electric energy. इलेक्ट्रिक एनर्जी के एक फॉर्म को ही हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. इट इज़ very important for us. It play very important role to our daily life. Many years ago, people used oil lamps and candles to lighten up their homes. They use wood fire or coal for their cooking. But we can use different variety of gadgets and appliances in our daily life. It is very important part of our daily life. So look at here. Electricity in our life. Electricity plays an important role in our life. Most of the gadgets and appliances we use for various purposes run by electricity. As you know that हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके थ्रू ही हम बहुत सारे गैजेट्स अप्लाइंसेस को यूज़ कर पाते हैं. वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ब्लेंडर, वैक्यूम क्लीनर, लैम्प, टेलीविज़न, कॉफ़ी मशीन, मिक्सर, fan, toast machine, microwave are some appliances we use for various purposes run by electricity. Not only at home but our transport sector also makers of electricity to run trains and trams. Factories and industries also use electricity to run various types of machines. Electric power supply. Electricity is a form of energy called electric energy. इलेक्ट्रिसिटी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कह सकते हैं जो कि एनर्जी का एक ही फॉर्म होता है. On large scale, electricity is generated at electric power stations by converting different form of energies like heat, wind, water, etc. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ होती है? इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन में जनरेट की जाती है. और किससे जनरेट होती है? थ्रू हीट, विंड एंड वाटर. इलेक्ट्रिसिटी thus produced is supplied to us through a vast network of electric cables laid underground or fixed on tall poles for safety purposes. आप सब लोग ने पाइलॉन्स देखे होंगे, पोल्स देखे होंगे, इलेक्ट्रिक पोल्स. Look at the picture here. These are pylons or electric poles. Got it? Through this electricity supply. In the power station, large machines called generators produce electricity. From there, electricity is sent out through very thick wires called cables. पावर स्टेशन में जनरेटर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और वहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी थिक वायर्स के थ्रू सेंड की जाती है. Tall, strong tower called pylons carry these cables. ठीक है, ये पाइलॉन्स आपको इस इमेज में दिखाई दे रहे हैं. ये थिक वायर्स को कैरी करते हैं. वंस द करंट रीचेज योर हाउस, जब हमारे घरों तक ये करंट आ जाता है उसके बाद इट फ्लोज इनसाइड थ्रू स्मॉलर वायर्स दैट रन अलोंग द सीलिंग और इनसाइड वॉल्स. हमारे घरों तक करंट पहुंचने के बाद ये छोटे छोटे स्मॉल वायर्स में हमारे सीलिंग्स और वॉल्स के अंदर रन करता है. These wires carry electricity to the light, fans and other electrical appliances at home. हमारे घरों में जो भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं वो इन्हीं वायर्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चलते हैं.
Electric current is very helpful. It can be very dangerous too. Cells. Not all electricity is made at power station. हमेशा इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन में ही जनरेट नहीं होती. सेल्स एंड बैटरीज ऑल्सो मेक इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सेल्स और बैटरीज जो हैं वो हमेशा छोटे छोटे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं या प्रोड्यूस करती हैं. अ बैटरी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स. ठीक है, बैटरी क्या होती है? एक से ज़्यादा सेल्स जब अलग अलग कॉम्बिनेशन में जुड़ते हैं तो वो बैटरी बनाते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ पर सेल के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं. टाइप्स ऑफ सेल: प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स एंड सोलर सेल्स. सो व्हाट इज प्राइमरी सेल? The cell used in a torch is a dry cell, and dry cell is a primary cell. The chemical inside the dry cell produce electricity. Dry cell के अंदर जो भी केमिकल होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. Once the chemical inside the dry cell are used up, जैसे ही ड्राई सेल के अंदर का केमिकल यूज़ हो जाता है, इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है. आफ्टर दिस द सेल हैज़ टू बी रिप्लेस. उसके बाद हमें सेल को रिप्लेस करना पड़ता है. दिस टाइप ऑफ सेल इज़ कॉल्ड अ प्राइमरी सेल. इस टाइप के सेल को हम प्राइमरी सेल कहते हैं. देयर आर अदर टाइप्स ऑफ सेल्स which when connected to a source of electricity can be recharged. ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जिन्हें हम जब इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तब वो रिचार्ज हो जाते हैं और हम उनका फिर से यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि प्राइमरी सेल में हम एक बार केमिकल ख़त्म होने के बाद उन सेल्स को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, लेकिन सेकेंडरी सेल में हम उनको दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं. दीज स्टोर इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन बी यूज्ड रिपीटेडली. These are called secondary cells or storage cells. Secondary cells are also called storage cells. Car batteries are made up of 6 storage cells connected to each other. ठीक है, कार में चलने वाली जो बैटरी होती है वो 6 स्टोरेज सेल से मिलकर बनी होती है. मीन्स 6 सेकेंडरी सेल्स आपस में जुड़कर कार की बैटरी बनाते हैं. ठीक है, एंड द अदर थर्ड वन इज सोलर सेल्स. You might have used calculators that have solar cells. You may also have seen solar cells near traffic signals and on top of buildings. Solar cells convert the sun's energy directly into the electricity. सोलर एनर्जी डायरेक्ट क्या करती है? सन की एनर्जी को या सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं. If we could collect all the sun's energy that reaches the earth, we could easily provide electricity to our homes, offices and schools for free. Dry cell. Look at the diagram. You notice here 2 terminals, positive terminal and negative terminal. The diagram shows the inside of a dry cell. The dry cell consists a cup-like container made up of metal zinc. जिंक का बना हुआ एक कप लाइक स्ट्रक्चर में ये हमारा ड्राई सेल है. ठीक है, जो कि जिंक मेटल का बना हुआ है. इस जिंक मेटल की वजह से ही हमारे ड्राई सेल को नेगेटिव चार्ज मिलता है. और पॉजिटिव टर्मिनल कार्बन का एक इलेक्ट्रोड होता है जो हमारे सेल को पॉजिटिवनेस देता है. ठीक है, मीन्स
जिंक सेल में प्रेजेंट होने की वजह से ही नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से सेल में पॉजिटिव चार्ज आता है। द जिंक इज़ अ नेगेटिव टर्मिनल and the positive terminal is a vertical carbon rod set in the middle and extending beyond the top of the cell. सेल के सेंटर में और सेल के ऊपर तक एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर में हमें कार्बन का इलेक्ट्रोड दिखाई देता है जो सेल को पॉजिटिव चार्ज देता है, और कप लाइक स्ट्रक्चर में एक जिंक मेटल का बना हुआ एनोड होता है जो हमारे सेल को नेगेटिव चार्ज देता है। अ ब्रास कप कवर इट एट द टॉप। ब्रास का बना हुआ एक कवर होता है जो हमारे सेल को टॉप में कवर करता है। द इनसाइड ऑफ द कंटेनर इज लाइंड विथ ब्लॉटिंग पेपर। ठीक है, ये जो सेपरेटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो क्या है, हमारा ब्लॉटिंग पेपर है। सोक्ड इन अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में सोक्ड हमारे पास ब्लॉटिंग पेपर होता है जो कि क्या करता है, लाइन करता है हमारे सेल को। ठीक है, अब हमारे सेल के अंदर अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि, और मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या होते हैं, मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। द होल सेल इज प्लेस्ड इन द कार्डबोर्ड कंटेनर एंड दिस इज पुट इनटू अ मेटल आउटर कवर। ठीक है, मेटल आउटर कवर होता है जो हमारे सेल को इलेक्ट्रोलाइट से सेपरेट करता है। मींस जो हमारे सेल के अंदर जो अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीज ऑक्साइड का मिक्सचर है उसे सेपरेट करता है उसके बाहर वाले पार्ट्स के साथ। ठीक है, लेट स्टोरेज सेल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेल। Solar cell convert the sun energy directly into the electricity. Different batteries of different use. Electric circuit. What made the bulb glow? Bulb कैसे ग्लो करेगा? When you use the wires to connect the bulb to the cell, the electricity from the cell was able to flow along one wire through the bulb and back to the cell through the other wire. Got it? जब हम बल्ब को ग्लो करते हैं तब हम एक सेल से बल्ब को कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू वायर्स। फर्स्ट वायर रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है जो कि सेल के पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ है, और ब्लैक वायर आपको दिखाई दे रहा है वो सेल के नेगेटिव एंड से जुड़ा हुआ है। जब दोनों ही टर्मिनल से वायर बल्ब को कनेक्ट करते हैं तब ही हमारा बल्ब ग्लो करता है। द पाथ थ्रू विच द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इज कॉल्ड अ सर्किट। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए एक पाथ की ज़रूरत होती है। द पाथ थ्रू विच द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, और वही पाथ जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो सर्किट कहलाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ टू टाइप्स, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। Open circuit is not a closed and continuous path. Open circuit closed और continuous नहीं होता, वो बीच में से टूटा हुआ होता है, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट इस
पाथ में से या इस सर्किट में से फ्लो नहीं करती और हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता। इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो इन एन ओपन सर्किट। द की इन एन ओपन सर्किट इज शो एज। ओपन सर्किट को इस तरह से शो किया जाता है जो कि ओपन सर्किट के थर्ड पॉइंट में आपको दिखाई दे रहा है। क्लोज्ड सर्किट, इट इज़ अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ। क्लोज सर्किट ऐसा सर्किट होता है जो कंटिन्यूस होता है, जिसमें सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोनों ही बल्ब से कनेक्ट होता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ क्लोज्ड सर्किट, हमेशा इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी क्लोज्ड सर्किट या क्लोज्ड पाथ में से ही फ्लो करती है और तभी हमारा बल्ब ग्लो करता है। क्लोज सर्किट को हम इस तरह से शो करते हैं जो कि आपको क्लोज सर्किट के थर्ड पॉइंट में दिखाई दे रहा है। डायग्राम में आपको ओपन और क्लोज सर्किट दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। ओपन सर्किट में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा और क्लोज सर्किट में बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स सेल को इंडिकेट कर रहे हैं, जिससे कि पॉजिटिव एंड से एक वायर गया हुआ है जो कि बल्ब तक जा रहा है। सेकेंडली, जो नेगेटिव टर्मिनल से वायर जा रहा है वो बीच से ब्रेक डाउन हो रहा है, जिस वजह से हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। क्लोज सर्किट में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से दोनों वायर जा रहे हैं और जो कि बल्ब से कनेक्ट हो रहे हैं। इस वजह से हमारे इलेक्ट्रिसिटी का जो पाथ है वो कंप्लीट हो रहा है और बल्ब ग्लो हो रहा है। सो व्हाट इज सर्किट? Continuous path of connecting wires and electric device such as bulb connected between two terminals of an electric cell is called electric circuit. ठीक है। Electric current flows in electric circuit. When the circuit allows the flow of electric current, it is said to be closed or complete, as shown in figure. When the circuit is broken at any point so that it does not allow the flow of electric current, it is said to be an open or incomplete, as shown in figure. The direction of flow of electric current is taken from positive terminal of the cell to the device, means bulb, and then to the negative terminal of the cell. ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है जो कि डिवाइस तक जाता है, डिवाइस मतलब बल्ब तक, एंड बल्ब से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल तक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। ठीक है, जो कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। कंडक्टर्स, the material which allow the flow of electric current to pass through them are called conductors of electricity. इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, जिनमें ईजिली इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है। ऑल मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, aluminium, copper, iron, etc. are the conductors of electricity. Beside metals, salt solution, impure water, moist air, graphite are also good conductors of electricity. ठीक है। Human body is also a good conductor of electricity. Insulators, the materials which do not allow the flow of electric current to pass through them are called insulators or bad conductors of electricity. ऐसे मटेरियल जो अपने आप में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते, वो इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर या बैड कंडक्टर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्राई एयर, थर्माकोल, सेरेमिक, प्लास्टिक, ग्लास, पेपर,
fabric, wood, rubber, foam, etc. Both conductors and insulators are equally important to us. All electric wires are made up of conductors to get electricity, but they are not left naked as they will give electric shock. सारे इलेक्ट्रिक के वायर्स कंडक्टर्स के ही बनाए जाते हैं, लेकिन कभी भी उन्हें नेकेड नहीं छोड़ा जाता। अगर उन्हें नेकेड छोड़ दिया जाएगा तो उससे हम इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। Therefore, they are covered with some insulating materials, जिस वजह से उन्हें इंसुलेटिंग मटेरियल्स या इंसुलेटर से बने हुए मटेरियल के साथ कवर किया जाता है। ओके, स्विचेस, प्लग्स, सॉकेट्स, हीटिंग अप्लायंसेस, light producing appliances all are made from conductors and they are covering from insulators. जितने भी स्विचेस होते हैं आपने देखा होगा उनके अंदर मेटल के स्क्रूज होते हैं, ठीक है, लेकिन ऊपर प्लास्टिक से वो कवर होते हैं। इलेक्ट्रीशियंस यूज़ रबर ग्लोव्स एंड शूज़ while working to save themselves from any electric shocks, ठीक है। जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं वो रबर से बने हुए ग्लोव्स का और हमेशा शूज़ या स्लीपर्स, प्लास्टिक की स्लीपर्स पहनकर ही वो काम करते हैं जिससे उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। टेस्टर, pliers, screwdrivers and other tools used to check or repair electric circuit are made up of conductors, but their handle are covered with plastic or rubber which are insulating materials. ठीक है, टेस्टर और स्क्रू ड्राइवर्स आपने देखा होगा, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो मेटल या कंडक्टर के मटेरियल से बना होता है, लेकिन जो उसका हैंडल होता है वो हमेशा इंसुलेटर्स का बना होता है जिससे कि उन्हें किसी भी टाइप का करंट या शॉक ना लगे। कॉशंस विद इलेक्ट्रिसिटी। Careless handling of electric devices or wires can cause severe injuries or may be fatal to life. Therefore, we avoid any accident. One should be very careful and should take following precautions. Don't put fingers in socket. In fact, never touch an electric plug, switch or device with wet hands. If you find sparkling in a switch or appliances, switch off the mains. Don't pull wires. In case of fire in electric wires, never use water to extinguish it. Water is a conductor of electricity. Instead, use dry sand to extinguish electric fire. अगर इलेक्ट्रिक फायर लग जाती है तो उससे बचने के लिए हमें सैंड का यूज़ करना चाहिए, ना कि वाटर का। ओके, डोंट यूज़ रेडियोज़ और हेयर ड्रायर्स इन द बाथरूम। इनफैक्ट नेवर स्विच ऑन और ऑफ अ गीज़र barefooted, especially when the floor is wet, as water is the conductor of electricity. हमें पता है कि वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का एक कंडक्टर होता है, इसलिए जब फ्लोर हमारा गीला हो तो हमें गीज़र का स्विच ऑन या ऑफ नहीं करना चाहिए बिना स्लीपर्स पहने, ठीक है। While working with electric appliances, wear dry slippers or shoes or stand on a wooden or plastic board, ठीक है। So these are the cautions with electricity. Be safe with electricity. Thank you.